Hi everyone, this is Dr. Numeha, and I'm kind of emotional today. I don't know why, um, but I wanted to share, my struggle with mental illness. So the thing is, I've always been a क्या बोलते हैं उसको introvert child and things like that since my childhood, and it's just that I've always felt lonely. So the first time things started to take a toll on me was, I think, when I was in 2009, 2010. Yeah. So at that time, I was involved in a pretty bad relationship, and about which my father did not approve, and he stopped talking to me because I took a stand for the person I was seeing that time. And of course, my father was right, I was wrong, but I realized this later on. So from that moment, because like I was very close to my father as a child. So from that moment, things started to change for me. Excuse me. So yeah, sorry. So it began in 2010, I guess, and it took me about 10, 11 years to imagine I'm a doctor, I'm a neurologist now. But it took me so many years. About I started my medications after speaking to a psychiatrist in 2021 October, because that was like my breaking point. I don't want to create any drama, nor am I doing anything for sympathy. I just wanted to share my bit so that it helps anybody. So I was always a very lively kid when I was young, and I have always stayed in boarding schools. So I used to be the fun of the party, and the most fun person. At least I like to think it that way. So, but as I things started to happen, I went to inside my own self, and I began to change. I could see that I was no longer that kid I used to be. I was not having fun. I was miserable. I felt lonely, mostly with people. I used to feel for a long time. Imagine 2010 to 2021, almost 10, 11 years. And I always people used to tell me कि why are you always grumpy, why are you always even my family members. आप सोचो कि I come from a family of doctors, but I always used to be irritable. हर बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन. I used to do good in exams and stuff like that, because like academics matters to me. तो इवन देन आई वुड बी लाइक दिस. मुझे कुछ फील ही नहीं होता था, किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं फील होता था. ऑलवेज लाइक एनहेडोनिया बोलते हैं इसको. एनहेडोनिया का मतलब है कि हिडॉन वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है प्लेजर, कि आप कुछ करते हो तो आपको अच्छा फील होता है. तो मुझे फॉर अ लॉन्ग टाइम 11 ईयर्स मतलब आई वॉज इन अ स्पेस जहाँ मुझे ना कुछ फील ही नहीं होता था. अगर मैं कुछ अच्छा करती थी, जैसे अगर मैं मेरा पीजी एग्ज़ाम क्लियर हो गया या डीएम एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता. मुझे ऐसा लगता था यार गलती से हो गया होगा. इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं. आई यूज्ड टू फील कि गलती से, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं यूज़लेस हूँ, और गलती से में भी हो सकता है कि भगवान की दया से निकल गया हो बाई चांस. आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट. आई यूज्ड टू फील इन्फीरियर टू एवरीबडी, एंड आई यूज्ड टू फील हर चीज़ को लेके, मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी इनसिक्योर एंड वेरी ऑलवेज एजी, नर्वस. बात बात पे आई वुड obviously I don't cry in front of people, but I would come to my room and close my room, and I would like bawl like crazy, so things like that. और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये this is not who I am as a kid. मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं ये इंसान नहीं हूँ, but I have become this, something like you have taken a garb and you have taken a mask and you have just worn it over your face, things like that. तो इवन माई फ्रेंड्स, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो एक दो लोग फ़ोन करते थे कभी कभी. जैसे देर इज़ दिस वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सुरभि. तो वो मुझे एक दिन उसने फ़ोन किया था, मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई वाज इन MBBS एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज. तो शी कॉल्ड मी एंड शी वाज टॉकिंग टू मी, एंड आई वाज जस्ट वेरी मोनोसिलेबिक. शी वाज कैसी है, एंड आई वाज लाइक देन शी टोल्ड मी दिस. मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन सम बस दैट टाइम, मुझे याद है, एंड आई वाज सिटिंग ऑन द विंडो सीट. तो शी टोल्ड मी कि यार अनु, ये तू नहीं है, यू हैव चेंज्ड, यू हैव the person you were as a kid, you are not that person. And I knew she was right. So this was the whole thing. I'll make another video, so please watch it, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. Hi.
So yeah, we were talking about mental health and depression. So but I was always, just imagine the kind of stigma that we live around with. मतलब I'm a freaking doctor, I'm a neurologist, I have all the access to everything. मुझे 11 साल लगते हैं मेडिसिन स्टार्ट करने में, टू स्टार्ट मेडिकेशन, एंड व्हेन आई वाज लाइक ऑन द वर्ज कि बस नाउ आई वोंट बी एबल टू फंक्शन. आपको बिलीव नहीं होगा जब मैं ये बोलूँगी कि व्हेन आई यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब मेरी आंखें खुलती थी, जैसे नींद खुलती है ना, आई यूज़ टू क्राई, आई यूज़ टू फील कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. मैं यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं करने आई हूँ, ना ही मैं कोई सिंपैथी गेन करने आई हूँ. मुझे किसी की सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई बिट, बिकॉज मैनी पीपल, मैनी डॉक्टर्स, दे कम एंड दे टेल मी कि आप बोल रहे हो, हमारे साथ भी होता है, वी ऑल्सो फील द सेम थिंग. नोबडी, पीपल आर सो बिजी प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग, मैन ऑफ स्टील, वुमेन ऑफ स्टील. क्यों इतनी प्रिटेंस करते हो यार? ठीक है, इट्स ओके टू ब्रेक डाउन, इट्स ओके टू हैव फीलिंग्स, इट्स ओके टू बी सेंसिटिव, इट्स ओके टू बी हर्ट, इट्स ओके टू हैव अ मेंटल हेल्थ इशू. इसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है? क्या है? आपका हाथ कट जाता है, आप जाते हो डॉक्टर से सूचर करवा लेते हो. इट्स जस्ट दैट इन द माइंड, एंड यू कांट सी इट. दैट डज नॉट मीन कि इट्स नथिंग, एकदम पागल हो गए हैं. सच पेजोरेटिव थिंग्स मैंने सुना है. इनफैक्ट बहुत क्लोज लोगों से सुना है कि पागल है ये तो, दिन भर इसका मुंह बना रहता है, कुछ भी हो जाए इसको खुशी नहीं होती है, क्या कुड़कुड़ी सी है, बैठी रहती है कोने में, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है. तो आपको ना एट वन पॉइंट जाके ना आपको ऐसा फील होने लगता है कि यार मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है. मतलब मैं ही सोचो, आप सफ़र कर रहे हो, यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इनसाइड योर ब्रेन, दैट टू बिकॉज ऑफ अ न्यूरो एनाटॉमिकल थिंग. मतलब आपके केमिकल केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई है. इट्स जस्ट लाइक व्हेन माय पेशेंट्स कम, तो मैं उनको समझाती हूँ. तो हाउ आई एक्सप्लेन देम इज़ लाइक कि देयर इज़ अ गाड़ी चल रही है, कोई बाइक है, उसको पेट्रोल चाहिए. पेट्रोल अगर कम होगा उसमें तो वो कैसे चलेगी? कॉमन सेंस की बात है. ऐसे आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन keeping ourselves in a perfect mental state, keeping ourselves happy, keeping ourselves in a balanced state. तो जब वो केमिकल्स की कमी हो जाती है, आपको डिप्रेशन होता है. ऐसे ही बहुत सारे डिजीजेस हैं, जैसे एंग्जाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारे मेंटल इलनेस हैं, बाइपोलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. बट द थिंग इज़ कि अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो इस मामले में थोड़ा भी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ना कि प्लीज़. एंड द थिंग इज़ कि आई हैड सीन 2-3 साइकियाट्रिस्ट बिफोर आई स्टार्टेड मेडिकेशन. एंड जो मेडिकेशन मैंने स्टार्ट की, वो मैंने मतलब इट वॉज माई विश टू स्टार्ट दैट मेडिकेशन. एंड ऑफकोर्स आई वेरीफाइड इट विद द साइकियाट्रिस्ट. तो कहने का मतलब ये है ना कि उनके पास में जाती थी तो दे यूज़ टू बी लाइक सो वियर्ड. दे यूज़ टू बी लाइक, कुछ लोग मेरे को कहते थे आपको एडजस्टमेंट इशूज़ हो रहे हैं, आपने योगा करो. And somebody would say कि you have some unresolved issues. Who doesn't have unresolved issues यार? Who doesn't have unresolved issues? I don't understand. And योगा करने से क्या होगा यार? It's some problem here. और there is so much I can say about mental health, but वो ये ना टाइम लिमिट हो जाता है. तो फिर मैं दूसरा वीडियो इसके बाद वाला भी बना रही हूँ. या सो बैक टू मेंटल हेल्थ. तो अगर आपको एटलीस्ट 2 वीक्स का तो क्राइटेरिया जो किताब में लिखा हुआ है वो है, बट इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. जैसा कि आपने मेरे केस में भी देखा, मैंने 11-12 साल अपनी ज़िंदगी के, इनफैक्ट उससे पहले से भी मेरे को हो रहा होगा, मुझे पता नहीं. आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि आई गेट टू अफेक्टेड टू थिंग्स, आई वे टू सेंसिटिव, लव टू हार्ड, too much. I sometimes feel I am too much. मतलब जब मुझे वो सिल्विया प्लैथ का एक है कि even I am so intense that even when I feel nothing, I feel it with all my heart and in my bones. तो that kinds. तो अगर आपको मेरा कहने का बस यहाँ पे यही मतलब है कि डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर्स का क्या है कि आप इतना टाइम पढ़ाई लिखाई में निकालते हो, आप ना बहुत लोनली हो जाते हो. दिस प्रोफेशन इज़ वेरी लोनली. द मोर यू असेंड इन लाइफ ना, इट गेट्स लोनली एंड लोनली. सम पीपल don't have a good married life, they don't have partners who understand them mentally, who are enriching, fulfilling, things like that. तो कहीं ना कहीं पे जाके ना डॉक्टर्स, क्या मैंने स्पेशली देखा है, आप जो पेशेंट्स देखते हो सारे कुछ, ऑल दोस stories, all that pain, all everything, it affects you so much. मतलब
one fine day it will just make you crumble, you know. तो हमारे को डॉक्टर्स, मोर एंड मोर डॉक्टर्स शुड बी, यू नो, द ओनस इज ऑन यू टू, यू नो, कम फॉरवर्ड विद योर ओन एग्जाम्पल्स. हो सकता है आपको दुनिया ड्रामेबाज बोले, यू नो, दीपिका पादुकोण, शी हैज़ डन सो मच फॉर, यू नो, डिप्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. पीपल कीप मेकिंग फन ऑफ हर कि ये तो रोती रहती है, तो शी इज़ सेलिंग हर डिप्रेशन. You know, you don't understand how it feels until you are the person, you know, feeling it. आपको ऐसे लगेगा कि बस यहीं पे वक्त रुक जाए, ज़िंदगी रुक जाए, सब ख़त्म हो जाए, एंड जस्ट एंड इट, यू नो. पीपल गेट सुसाइड. आई वॉज सुइसाइडल, यू नो, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो everybody would see me and they would be like, there is something wrong with her. There were some very nice teachers even at you know, JB Pant, जो मुझे बुलाते थे अपने पास, and they used to tell, बच्चे क्या हो गया, you know, you're very sad, what happened and things like that. But obviously I could not, you know, tell people because, so you know, things like that. So in a nutshell, अगर आपको, you know, you relate with my, you know, feelings, if you are, you know, for a stretch of time you don't feel like eating, or you're eating too much, if you're sleeping too much or you can't sleep, you have, you know, you always feel low no matter how good things happen, कुछ भी होता है आपको अच्छा नहीं लगता है, nothing makes you happy, nothing makes you feel engaged, you feel like you would rather die or disappear, and you know, you just feel like crying all the time, you have become more fragile emotionally, you know. ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं, आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो रहे हैं, लाइक यू आर नॉट इनफ, यू फील इन्फीरियर, यू नो, आपको गिल्ट हो रहा है, आपको वर्थलेसनेस हो रही है, एंड यू फील यूर हेल्पलेस, आपको सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, यू नो. ट्रायड बोलते हैं इसको, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, और एक और क्या था, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, देख के बताती हूँ. होपलेसनेस, ये कैसे मैं भूल गई. सो आई हैव बीन इन दैट dark place where not even my family members could understand me in spite of them being doctors. So I have no hard feelings against them. सब अपने अपने हिसाब से, you know, दुनिया देखते हैं और समझते हैं, तो हर किसी का अपना, obviously they love me but they couldn't understand me, and that's okay. But you know, now when I have started taking medication after 2-3 years, 2021 से I have been taking medication, I feel like कि वो जो मैं बचपन में थी, यू नो, दैट किड, आई एम बैक टू दैट पर्सन. एंड यू नो, पीपल जिनको पता भी नहीं है कि, यू नो, आई हैव बीन ऑन मेडिकेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, दे यूज्ड टू टेल मी कि, यू नो, यू हैव बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. माई डीएम बैचमेट्स वुड टेल मी कि यू हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन यार, ऑल टुगेदर, यू नो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीबडी, यू नो, जस्ट हैप्पी इन माई स्पेस, कॉन्फिडेंट, यू नो, आई विल डू थिंग्स, दिस दैट. Of course, I feel things too much even now, but things are so much better. I can't tell you, you know. So yes, life is indeed worth living, and especially for doctors, मतलब हाथ जोड़ के मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, तो प्लीज़ सी अ साइकियाट्रिस्ट, प्लीज़ स्पीक टू अ प्रोफेशनल. एंड यू नो, आई हैव बीन इन दैट tunnel for years, and you know, I couldn't see any light. I would rather, you know, feel like finishing myself off and just, you know, disappearing ऐसे एकदम ना. But you know, ज़िंदगी आपको जब तक मिली है, you know, आप उसको जीना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो नहीं है. तो एटलीस्ट आप, यू नो, खुश होके तो हर समय नहीं रह पाओगे, बट एटलीस्ट न्यूट्रल पे खुद को लेके आओ, नीचे, यू नो, वहाँ पे मत रहो. एंड देयर इज़ होप, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड मेडिकेशंस, एंड आप अगर, इफ़ यू कैन रिलेट विद मी, प्लीज़ get, I won't say get well soon, because you know, it's like very pejorative and very demeaning. So you know, take medications, take counseling, do daily exercise, do whatever you feel like, feel alive, that is very important. And you know, just be happy. There is no other feeling like, you know, just being happy and you know, relaxed with who you are as a person. So that's about it. I wish you all lot of happiness, lots of love, and I won't say cheesy lines like there is light at the end of the tunnel. No, I can't say that, because for a long time I could not see that light. So yes, just go on, be sensitive, love hard, and you know, take care of yourself.